I don't need to remind all of you that this has been a stupendous year for Indian sports, especially as far as Olympics and Paralympics is concerned. Who could have thought that a COVID pandemic marred Olympics are going to be our best ever? But these Olympics were indeed extremely special. A record 7 medals in the Olympics and a record 19 medals at the Paralympics. So I want to begin by just inviting a round of applause again. We have, of course, 3 of our stars who represented India at these games and came back with laurels. Once again, for the reminder of our audience, we have 3 Khel Ratnas amidst our, in our presence. So a big round of applause for that too. Avni and Sumit were awarded the Khel Ratna this year. In fact, they were amongst the 5 gold medalists at the Paralympics, and all 5 gold medalists were awarded the Khel Ratna this year. So that was a great recognition also by the government as far as their achievement is concerned. So let me begin by, of course, going across to Avni. 19-year-old, first Olympics, now a 2-time medalist, the first Indian woman to do so, to win 2 medals at the Olympics, at the same Paralympics, and of course the first Indian female Paralympian to win a gold medal. Now, Avni, it's been 3 months or so. Has it finally settled what you've achieved? First of all, thank you so much for inviting me here. And yeah, there's been a change after medals, a very good one in that sense. The para sports is being recognized now, and we are seeing the environment getting more and more inclusive also. And I go out and I see little kids and they say, we want to become like you, and that's like, that feels like a real success. सुमित, देख के अच्छा लगता है कि इस पैनल पे भी 2 पैरालंपियन बैठे हैं बजरंग के साथ, और वैसे भी पैरालंपिक्स को बहुत रिकग्निशन मिली है इस बार. जितनी हम चाह रहे हैं मिले, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं एटलीस्ट. आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल. जिस तरीके से पैरालंपिक्स को इस बार रिकॉग्निशन मिली है, काफ़ी अच्छा लगता है कि नॉर्मल एथलीट्स के साथ साथ पैरा एथलीट्स को भी इतनी रिकॉग्निशन मिल रही है. बट मेरा मानना है कि एकदम से कुछ भी नहीं होता. थिंग्स टेक टाइम. तो टाइम के साथ साथ रिकॉग्निशन भी बढ़ेगी और रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगी. परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली रिकॉग्निशन भी परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली रिकॉग्निशन भी बढ़ेगी और रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी. I don't know how many of you know, but actually Sumit wanted to be a wrestler. He was training to be a wrestler before he met with an accident and then had to shift to javelin. And interestingly, Bajrang and Sumit come from the same village, but I've never met before. They're meeting here for the first time. Not from the same village, from the same city. From the same city. But आप लोग जब आपस में अब पहली बार मिल रहे हैं, तो बजरंग आप कैसे इनकी जो परफॉर्मेंस है उसके लिए कैसे कंग्रेचुलेट करेंगे? देखिए, बिल्कुल पहली बार मिले हैं, क्योंकि मैं भी साई में ट्रेनिंग करता हूं, पर सुमित भाई साई में ट्रेनिंग नहीं करते हैं. तो बिल्कुल अच्छा लगा जब मेडल जीता तब भी, क्योंकि देश के लिए जितने भी ओलंपिक मेडल जीते उतने ही कम हैं. जितनी परफॉर्मेंस हम दे सकते हैं अपनी तरफ से एज ए एथलीट, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं. और अब की बार पैरा ओलंपिक में जो 19 मेडल जीते हैं हमने, तो वो किसी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है देश के लिए, क्योंकि हमने पूरे जितने भी ओलंपिक गए हैं उनमें इतने मेडल नहीं जीते जितने हमने इस ओलंपिक में पैरा में जीते हैं. 19 मेडल. पहले 12 जीते थे सारे पैरालंपिक्स में, और इस पैरालंपिक्स में ही अलोन हमने 19 जीते हैं. बिल्कुल जी. तो सभी जो पैरा एथलीट हैं, सुमित भाई है और बहन है, तो सबको मैं बधाई देता हूं कि भाई आपको बहुत बहुत बधाई. और आने वाले पेरिस में भी आप ऐसे ही देश के लिए बहुत सारे, अभी 19 है, 19 से ज़्यादा 50 के नज़दीक जाए मेडल हमारे. और हम जैसे USA है, रसिया है, जो मेडल टैली में ऊपर रहते हैं उनकी बराबरी पे हम जाए, क्योंकि हमारा आबादी में दूसरे नंबर पे है विश्व में. तो हम चाहते हैं कि हमारा देश भी मेडल टैली में सबसे ऊपर हो. बट ठेठ हरियाणवी में आप क्या बोलेंगे सुमित को? मतलब किस तरीके से, बधाई देने में या बधाई देने में, वैसे बोलने में? क्या मतलब क्या बधाई देंगे अगर आपको? बिल्कुल हरियाणा में तो ये होगा, लठ गाड़ दिया भाई. लठ गाड़. Backstage they were talking in Haryanvi. I could barely understand most of it. But that sense of camaraderie definitely is something that we are seeing growing as far as Indian sports is concerned. Each one, helping the other and also congratulating and, enjoying the success that the entire team, the entire contingent in Olympics and Paralympics got. But I also want to ask you, that sense of
doing more? Because all of you played in your first Olympics. You've already achieved so much. How do you keep yourself motivated from here? But Avni, I want to come to you on this because you you equaled the world record to win your gold medal, but you weren't really fully happy. Why is that? Um, when we train, shooting is more of a detail game, and I wanted to give the last shot my best. और मैंने पूरा यही कोशिश करी थी starting से लेकर end तक that I'll focus on the process more, and because I wanted to give my 100%, and that last shot was a 9.9. So yeah, that hit me here, but eventually when I saw the faces of our team members, my coaches, my mom was there also. They were very happy, and that made me realize, yeah, I have to enjoy this moment first. And then after that we went, because I play 4 events. And I feel like I feel like जितना हम दे सकते हैं हमें पूरा 100% कोशिश करनी चाहिए उसके लिए. And मेरे बाकी 3 इवेंट्स में भी मेरे को ऐसा नहीं था कि अभी गोल्ड आ गया है तो लेट्स जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स. आई वांटेड टू गिव माय 100% इन दोज इवेंट्स एज वेल, एंड दैट्स व्हाई 3P वाज माय सेकंड टारगेट. 3P वाज माय सेकंड फेवरेट इवेंट यू कैन से, और उसमें इट इज़ ऑलमोस्ट डबल्ड एज R2 इवेंट. और उसके लिए I almost broke a world record in qualification round, and then ended up winning a bronze. So that's when it's like how you can make a better version of yourself each and every day. But how tough is it to train yourself for such a big event? And like you said, you play 4 events. You would have targeted at least a couple of medals before going in. Can you describe to us what it was like the few months before the Olympics and when you finally landed in the village? Was it a lot of anticipation, excitement, or were you overwhelmed as well? As in 2020 we were in lockdown, and my training came at halt, and I was just numb for a couple of weeks. But then I thought of taking it in a positive note. I started self-introspecting and finding out my weaknesses and my strengths. Then started working on them. I've arranged basically gym at my home, my shooting range at my home. I used to take mental training sessions with my mental trainer online. My coach used to train me online, and this is one thing that happened in lockdown, that we can now take training and test sessions online, so that people who are suffering with anxiety, they can do something that they really want to do with the comfort of their own home. And that's also, and my goal was to win a gold medal, to win multiple medals in Paralympics. That kept me going. And then the last 2 months we've trained in Dr. Karni Singh shooting range, and the environment there was very supportive. We had they were looking after our nutritional needs, they were looking after our physical, our training needs. We were practically practicing about all the things, all the elements which will help us in winning medals. And it is because of the government, the federation, they've supported a lot. And I was pretty nervous, pretty anxious when I went to the Paralympic Games, because it was my first Paralympic Games, and going there, playing 4 events, it was a hard work, because you can't, concentrate on all the events in a day. So you have to divide the time. You have to, alternatively practice for each one of them. But I set it a target that I'll play 2 events as my main event, and 2 will be like, for my experience, so that I can improve them in further matches. So I went there with that thought. And also my coach also said that so I was very nervous just a day before the match, and we went for a long walk, and she said, it doesn't matter if you don't win a medal, just go out there and give your best, and I will be there supporting you behind your back. And that helped me a lot, gaining the confidence. Well, it is one thing to say it doesn't matter, but we all know that it does. And no longer does the Indian athlete is happy just going there and making the numbers. अब जो Indian athlete जाते हैं Olympics Games में, Paralympics में, वो इसी मोटिव से जाते हैं कि जीतना है, सिर्फ खेल के आना है. वो मोटिव नहीं रह गया. बजरंग, सही है ये? आपका पहला ओलंपिक्स है, लेकिन आप रेसलिंग से काफी टाइम से जुड़े हो, तो आपने भी ये परिवर्तन देखा होगा.
बिल्कुल पहले जाते थे किसी से पूछते थे कि यार खेल के आना है जाके। तो अभी चाहे कोई नया, जिसने मैं रेसलिंग की बताऊँ, चाहे 1 साल रेसलिंग करते हुआ कोई बाहर जा रहा है तो आप पूछोगे कि भाई क्या करने जा रहा है, तो सिर्फ बोलेगा मैं गोल्ड के लिए जा रहा हूँ। तो ये चेंज मैंने रेसलिंग में जब से मैंने स्टार्ट की, जब से उसके बाद देखा है। बट ये चेंज कैसे आया है? चेंज जब हम बाहर जो हमारे सीनियर एथलीट हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे अब हमने ओलंपिक में 7 मेडल जीते, पैरा में 19 मेडल जीते, जो हम आने वाली जनरेशन उनका और हौसला बढ़ा है कि भाई हम भी जीत सकते हैं अगर ये लोग। तो ये एक बदलाव का जो ओलंपिक से मेडल आते हैं, वर्ल्ड में मेडल आते हैं, एशियन गेम्स में मेडल आते हैं, तो वो बदलाव का एक रीज़न होता है कि खिलाड़ियों में एक मन वो होता है ना कि भाई आप नहीं कर सकते, आप एक बोलने वाले होते हैं कि भाई आप नहीं कर सकते, और कोई आदमी उसको कर दे तो फिर इजी हो जाता है कि भाई हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, उसने सुमित ने कर दिया था तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो चीज़ एक अंदर से एक पॉजिटिव आता है, एक कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ। जब हमारे इतने मेडल आने लग रहे तो हम भी मेडल जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है रेसलिंग में जब से मेडल 2008 से हमने मेडल जीते हैं, तब से लगातार मेडल, क्योंकि रेसलिंग में कोई भी जाता है वो ये सोच के जाता है कि भाई हम मेडल जीत के लेके आएंगे। तो उनकी सोच में अगर वो बोलते हैं कि जो ठान लिया तो उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो इंडियन रेसलिंग में ऐसा क्या खास है? आपने मेंशन किया 2008 ओलंपिक्स से हर ओलंपिक्स में हमें मेडल मिल रहा है और हर साल नए नए टैलेंट सामने आता रहता है। बहुत अच्छा क्रॉप ऑफ रेसलर्स है हमारे पास। आप लोग बहुत सारे आपस में ट्रेन भी करते हो, एक दूसरे को मोटिवेशन बढ़ाते भी हो एक दूसरे की। बहुत एक फैमिली ट्रेडिशन है, एक कल्चर है रेसलिंग कुश्ती का इंडिया में, स्पेशली कुछ सिटीज़ में, विलेजेस में। तो क्या खास लगता है आपको इंडियन रेसलिंग ट्रेडिशन में कि साल भर साल नए टैलेंट आता रहता है और हर ओलंपिक्स में मेडल आते हैं? ये बदलाव 2008 के बाद आया, जब सुशील भाई ने ओलंपिक में मेडल जीता था। तो काफ़ी लोगों की सोच चेंज हुई थी कि भाई पहले पहलवानों को इस नज़र से नहीं देखा जाता कि भाई रेसलिंग है, ठीक है, चल रहा है। तो 2008 में जब ओलंपिक में मेडल जीता, उसके बाद लोगों की सोच चेंज हुई कि भाई हाँ, ओलंपिक अगर हम रेसलिंग में डालेंगे तो हमारे बच्चे भी कामयाब होंगे। तो वही रीजन था। 2012 में फिर हमने 2 मेडल जीते, सुशील ने और योगेश्वर ने। तो उसके बाद और बदलाव आ गया। फिर लड़कियों में साक्षी ने 2016 में जीता। तो लड़कियां भी हरियाणा में जो पहले बोलते थे कि लड़कियों को कम खिलाते हैं, तो वो लड़कियों को भी काफ़ी क्रेज हुआ उसके बाद। तो लगातार मेडल जीतना यही है कि भाई माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को लेकर रेसलिंग के लिए जागरूक हैं, हरियाणा में खासकर, कि भाई हम अपने बच्चों को रेसलिंग में डालें। क्योंकि हरियाणा में रेसलिंग, कबड्डी और बॉक्सिंग, ये 3 गेम है जिसमें माँ बाप अपने बच्चों को डालने की वो हमेशा ये रहते कि भाई हम खिलाड़ी बनाएंगे। पहले ये सोचते कि भाई बड़े हो गए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईपीएस ऑफिसर बने, पर गेम में कोई नहीं था। अब माँ बाप भी ये सोचते कि हमारा बड़ा होके वर्ल्ड चैंपियन बने, ओलंपिक चैंपियन बने। तो ये जो बदलाव है ये हमें आगे बढ़ने में प्रेरित करता है। सुमित, आप भी रेसलर ही बनना चाहते थे? जी बिल्कुल, मैं सोनीपत से हूँ। तो सोनीपत में आपको हर घर में रेसलर मिल जाएगा, लिटरली हर घर में, बिल्कुल। तो मैंने भी शुरुआत रेसलिंग से की थी। तो जब मैं छोटा सा था, मेरे को अभी भी याद है, मैंने सुशील पहलवान जी को पहली बार देखा था। तो उस टाइम पे फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे हमारे पास कि फ़ोटो ले लें, बट मैं उनसे जाके मिला ज़रूर था कि, तो उनको देख के काफ़ी इंस्पायर हुए थे हम। तो जहाँ पे अब बजरंग भाई प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी उसी स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था। बट 2015 के बाद जब 17 में जेवलिन स्टार्ट किया, तो बट पीपल को, जैसे लोग पूछते हैं कि आपको जेवलिन करते हुए कितने साल हुए हैं, तो मैं बोलता हूँ कि सिर्फ 4 साल। तो वो बोलते कि अच्छा 4 साल में गोल्ड आ गया। बट वॉट अबाउट द स्ट्रेंथ आई गेन फ्रॉम रेसलिंग, जो बचपन से मैंने रेसलिंग की थी, उसकी जो ताकत शरीर में पहले 2015 से लेके 2017 के बीच में जो मैंने प्रोस्थेटिक लिम्ब को चलना सीखा, जिस पे जैसे एक नया बच्चा चलना सीखता है ऐसे ही चलना सीखा, उस पर दौड़ना सीखा। उसके बाद जैसे मैं कॉलेज से घर पे आता था तो अपने आप को कमरे में बंद करके जो वर्कआउट करता था उसका किसी को भी नहीं दिखता। तो सिर्फ 4 साल दिखते हैं, बट जो बचपन से रेसलिंग करके स्ट्रेंथ गेन की थी वो थोड़ा कम ही दिखती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप वैसे तो बचपन से एथलेटिक थे, आप स्पोर्ट्स करते थे, लेकिन जो रेसलिंग की ट्रेनिंग आपने बचपन से ली है उसकी मदद आपको मिली है जब आपने बिल्कुल, जैवलिन में उसकी शिफ्ट काफ़ी किया? ज़्यादा मदद मिली है मेरे को, 70% उसी की मदद मिली है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑलरेडी मेरी बॉडी में काफ़ी थी पहले से ही। आई हैव टू जस्ट वर्क ऑन माई टेक्निक। जैसे जैसे टेक्निक इंप्रूव होती गई, टाइम टू टाइम थ्रो बढ़ती गई। आप अपने जो आपका जो स्पोर्ट है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि आप प्रोस्थेटिक लेग लगा के, आपका एक्सीडेंट के बाद लेग को एम्पुटेट करना पड़ा था, उसके बाद आप प्रोस्थेटिक लेग लगा के जैवलिन थ्रो करते हैं। तो
कितनी डिफिकल्टी होती है नॉर्मल जैवलिन थ्रो और इससे आपको कितना चेंज करना पड़ता है अपना टेक्निक, अपना फोकस, क्या एक्स्ट्रा करना पड़ता है, क्या कम करना पड़ता है? बिल्कुल मैम, नॉर्मल जेवलिन थ्रो और पैरा जेवलिन थ्रो में दिन रात का फ़र्क है। बिकॉज आप सुबह उठते हो तो आपको जब तक आपकी मसल्स वार्म अप नहीं हो जाते आपको पैर का दर्द सहन करना ही पड़ेगा, उसका कोई भी वो नहीं है। और कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जो कर ही नहीं सकते आप, लाइक आप फुल स्क्वाट्स नहीं कर सकते ड्यू टू लिमिटेड मूवमेंट ऑफ द नी। तो उस कुछ चीज़ें ऐसी है जो जिनको आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढने ही पड़ेंगे, लाइक उस मसल पे कैसे वर्क किया जाए। और मार्च में इसी साल मैं नीरज भाई को और शिवपाल भाई साहब को देखने गया था कि ऐसा क्या है उनमें जो लाइक वो 80 मीटर इजीली फेंक रहे हैं और हम 70 पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उस टाइम पे कुछ लाइक टेक्निकल चीज़ें भी निकल के आई कि हाँ, जिस तरह से वो ग्राउंड की पावर लेते हैं और हम प्रोस्थेटिक लिम्ब के सारे वो पावर चाह के भी नहीं ले सकते, क्योंकि आप ज़मीन से कनेक्टेड ही हो तो आप ज़मीन की पावर भी नहीं लोगे। जैसे मैं रेसलिंग करता था तो जब छोटा सा था मेरे कोच एक ही बात बोलते थे, ज़मीन से कॉन्टैक्ट बनाए रखो, जब अगर जो ज़मीन से पैर उठ गए तो आप ख़त्म हो उधर ही। तो वो चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं महसूस हुई कि आप प्रोस्थेटिक लिम्ब के सारे ग्राउंड कॉन्टैक्ट बना ही नहीं सकते। तो बट हाँ, जितना मैं उसको लाइक नॉर्मल डिफरेंट लिम्स के यूज़ करके देख रहा हूँ तो मे बी आई गॉट माई बेस्ट लेग येट। और कोशिश करेंगे कि अभी जैसे मार्च में मैंने इस लेग को लगवाया था, बट कोशिश करेंगे कि इसके हैबिचुअल हो। अभी तक मैं पूरी तरह से हैबिचुअल नहीं हुआ इस लेग के, तो मे बी फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा कि जितना फार मैं फेंक सकूँ। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप जो अभी प्रोस्थेटिक यूज कर रहे हैं, आपने मार्च में ही शुरू किया था, तो बिल्कुल, इस बिल्कुल। ओलंपिक्स में भी आप उसको यूज करने में हैबिचुअल नहीं हुए थे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी मैं हैबिचुअल एंड नहीं हुआ येट यू ब्रोक योर ओन वर्ल्ड रिकॉर्ड 3 टाइम्स टू विन द गोल्ड। था। या मैंने नए लिम्स लगवाने, जब मैं टॉप स्कीम में आया, जब लिम्स का खर्चा गवर्नमेंट पे करने लगी, बिकॉज काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं लिम्स, लाइक 4-5 लाख। उसकी सिर्फ 1 टाइम वारंटी होती है, लाइक एक बार टूट गया आपको एक बार चेंज करके दे, बट फिर से टूट गया तो कोई भी वो नहीं है। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी लाइक मुश्किल होता है ये चीज़ कि एक लिम्प पे आप 4-5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और उसका कोई भरोसा भी नहीं है कि कब टूट जाए। तो जब मैं टॉप स्कीम में आया तो मैंने गवर्नमेंट के थ्रू जब लिम्स मिले तो मैंने अलग अलग लिम्स जो फ़ॉरेन के एथलीट्स यूज़ करते हैं तो वो ट्राई करके देखे, बट उनसे मेरे को इंजरीज आनी शुरू हो गई। देन मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास थे एक मैनेजर थे, अर्नव भैया मेरे एथलीट मैनेजर थे गो स्पोर्ट से। उन्होंने काफ़ी रिसर्च की उस चीज़ पे, तो उन्होंने एक ओसर का चीता एक्सप्लोर फूड है तो उसके बारे में बताया कि सुमित यू शुड ट्राई दिस वन। तो 1 साल तो मेरे को उसको सेट करने में ही लग गया, मतलब प्रॉपर सेट अभी भी नहीं हुआ वो बट हाँ, मैं इससे काफ़ी अच्छी थ्रो कर सकता हूँ अगर जो मैं रेगुलर इस पे प्रैक्टिस करूँगा तो। आपका टारगेट है 80 मीटर्स। या नहीं, पता है क्या हुआ है, ओलंपिक्स के बाद पता नहीं किसने लाइक गलत स्टेटमेंट छाप दी कि डोंट गेट सरप्राइज टू सी मी इन ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स 2024। अच्छा। तो उसके बाद मेरे पास वो स्टेटमेंट आई तो मेरे कोचेस ने बोला कि तूने सच में ये स्टेटमेंट दी। मैं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो उसके बाद मैं 80 मीटर मार्क जरूर टच करना चाहूँगा। एवरीवन, कोई भी करना चाहेगा स्टेज पे आगे। आपका मेन एम है कि पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स में जो डिफरेंस है जैवलिन थ्रो में, मेंस जैवलिन थ्रो में, वो आप कम करना चाहते हैं? बिल्कुल। जब मैंने गेम की शुरुआत की तो द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड माय कोच देन व्हाट इज़ द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लाइक माय कैटेगरी। तो उस टाइम पे हंस रहे थे कि ना स्टेट खेलिए, ना डिस्ट्रिक्ट खेलिए, ना नेशनल खेला, सीधा वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहा है ये। तो उस टाइम पे लाइक 54 मीटर इंडियन स्टैंडर्ड था, 54-55। तो वो बोले कि 50 मीटर इंडिया में फेंकते हैं बहुत ज़्यादा, 50 मीटर। मैं क्या, मैं ऐसे फेंक दूंगा। तो उस टाइम पे तो मेरे को ये लगा कि हल्का सा इम्प्लीमेंट है, बट काफ़ी टाइम लग गया मेरे को उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। जब मैंने गेम स्टार्ट किया तो 59 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, तो आई हैव इंक्रीज लाइक 10 मीटर, ऑलमोस्ट 10 मीटर। तो कोशिश करेंगे 68.55 आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। या कोशिश करेंगे इसको जितना ऊपर तक ले जा सकें, क्योंकि फिर ये ना हो कि ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आपका एक पर्सनल मोटिवेशन है कि आपको प्रूव करना है कि एक पैरालंपिक एथलीट भी ओलंपिक एथलीट के लेवल का थ्रो कर सकता है। इज दैट व्हाट द मोटिवेशन इज? या दैट्स द वन थिंग, बट एक अलग चीज़ भी है कि लोग जज करते हैं आपको कि अच्छा उसमें 87 था, अपने में 68 है, बट वो परेशानी किसी को नहीं दिखती कि इतनी परेशानी होने के बावजूद वो लाइक 70 मीटर। बट हाँ, जो जेवलिन थ्रोअर्स उनको पता है 70 मीटर थ्रो कितने होते हैं, तो वो सभी रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ भाई वाकई में तगड़ा है तू। नहीं, obviously there is a difference, but commendable to you that you actually want to decrease that gap, because that will improve the position that the Paralympic event has also in people's eyes. Avni, how difficult was it for you after your accident to
shift into shooting, pick a sport which is, you know, you have to be so focused, you have to train for hours, you have to condition your mind and body both. Were you, first of all, interested in sports at all, or was this something you had to direct your life towards? No, not initially. So after the accident and when everything settled down and the reality struck that, but I was like, I don't want to give up on everything. So then and my family supported me throughout with it, and then I was bedridden for 6-7 months, and then homeschooled for 2 years. Then my father, he forced me practically to join some sport and, try a few and then see what works. So I tried, mostly I'll say that, I didn't choose or, find shooting. Shooting found me, and then I started pursuing it. Initially, it was like very challenging because I didn't have the physical strength. मुझसे rifle भी नहीं उठती थी, and to be able to hold it for like 1.5 hour and then shooting tens and inner tens, that was very hard. Plus, it is a very detailed sport, like I said. So we had to, research day and night about it because there was not much, information about parachuting as such. There were not specialized parachuting coaches in India at that time. Because able-bodied athletes, they stand and shoot. So I didn't know how to customize the rifle according to me so that I can sit and then shoot, and to be able to, find the better equipments that will suit me because I'm shooting on a wheelchair. So this chair is like my legs. So even the cushion matters. How much the stiffness is required. It shouldn't be much softer. It shouldn't be much tighter. And then I didn't know about my classification according to my disability. We have to find out about that also. And I can't travel alone, so I have to take my mom everywhere with me, So she went with me from the regional games to the Paralympic games, and that is like the biggest thing for me, supporting me throughout. And then because I am on a wheelchair, if I shoot for a longer time, my back starts hurting. That's why the two events that I took as just experience, because those are the prone events. We have to put our hands on the table and then shoot. So the load comes on the back. So to be able to, strengthen my back, strengthen my balancing, and breathing matters a lot. So when I am in the game, and because you are holding the rifle on your body, so you have to shoot and then control your breathing, focus, concentrate, trigger, and then follow through all that things at the same times. So we had to manage all that, and shooting is like when you reach there, it is more of a mental game. When you reach in the finals, all the 7 athletes other than me are feeling the same kind of pressure, if not more. To be able to compete with them, you have to calm yourself. And for that, we used to do a lot of mental training exercises. In fact, before you went to these games, would it be fair to say that you had a bit of a gold jinx? You had not won a big gold medal, and that was missing from your, cabinet. So did that put extra pressure on you when you were 7th in the qualification, for example, in the 10-meter event? So this is something, I'll tell you a thing. I set a target for myself. So this is my last junior year. So I wanted to break world record, Paralympic record, world record, junior, win a gold, all that in a single match. And then, everybody said, don't put that much pressure on yourself. It's okay. We are happy with the gold medal only. It doesn't have to be a world record. But I was like, no, I want to do it. And then, because I couldn't participate in more events because of the COVID. So this was like the last match for me. You had to make it count. Yeah. And there were a lot of firsts in this match. So I won a gold. I broke a world record. I equaled a junior world record. I broke a Paralympic record. And then, winning 2 medals. So the 3P medal was my first medal in that event. Yeah. To be able to win that,
And like, like Sumit said that, in my first event, I came 7th in the qualification round, and even though I won a medal, it was not a good score. So everybody said that para sports is so easy, and the scores are so low, and that also they are winning medals. So I wanted to give my best in the next match, and then I shot 1176 in 3P, which is the highest. They didn't even shoot it in the Olympic Indian contingent, and I shot that. So that I can do that also, and then that's why the bronze is like much more special to me. Yeah, I was going to ask you that because the 3P position event is much more difficult. Definitely. Is that bronze as good as a gold for you? Absolutely, because it is like the double of standing, and I put in so much efforts because R2 is like my main event. It is like very close to my heart, and I started shooting in 2015. So from 2015 till 2018, I was just doing R2, and then I just started 3P in 2018, and it's been like 3 years. And then to be able to go there and to be able to shoot a world record, and then winning a bronze, and that too my first bronze in 3 years, it took a lot of patience, a lot of hard work, because it's 3 positions, and you've got only 7 minutes to change position, your wheelchair, your setting, then to shoot trial shots, and then start the match. And it is all in between, and then everybody is running, everybody is doing everything fastly, and still maintaining the calmness. It takes a lot of effort. So I'm Are you, happy are you satisfied out of your performance? या अभी भी ऐसा कुछ लगता है कि वो 9.910 होना चाहिए था, right? So I'm happy, but not yet satisfied. That's good. There's a very long way to go for me, and I want to, because now, as I said, that parasport is being recognized and everybody's saying, so it's inspiring and motivating me more to do better in the upcoming matches, to be able to win more laurels for the country, and hopefully winning more than 2 medals in the next Paralympic Games. Well, we wish you all the best, and that's the best thing, Bajrang. अब एथलीट्स एक मेडल से ही खुश नहीं है. जैसे कि आप सबका पहला ओलंपिक्स है, तो कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि गोल्ड जीतने के बाद अब बचा क्या है. ये सवाल हम नीरज से भी पूछते हैं फॉर एग्जांपल. लेकिन सारे जो यंग जनरेशन, आपकी जनरेशन के जो एथलीट्स हैं, उनको यही नहीं है कि ओलंपिक्स में जाके मेडल जीतना है. उनको ये भी है कि एक ओलंपिक्स में 1 मेडल काफ़ी नहीं है, या अवनी के लिए उसके एक पैरालंपिक्स में 2 मेडल भी काफ़ी नहीं है, दोबारा जाके भी जीतना है. पर वो मोटिवेशन रखना, उसी लेवल पे ट्रेन करना, एक मेडल जीतने के बाद वो मुश्किल तो होता होगा. आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं? देखिए, बहुत से खिलाड़ी ऐसे जो ओलंपिक में कई मेडल जीतते हैं. माइकल फिलिप्स है, हुसैन बोल्ट है, जो 2-2, 3-3 मेडल एथलेटिक्स में लेके जाते हैं. माइकल फिलिप्स है, 7 मेडल 8 मेडल लेके जाते हैं. तो हमारे इंडिया के खिलाड़ियों में भी वो क्षमता है कि हम भी मेडल दोहरा सकते हैं. तो एक बिल्कुल नीरज भाई ने बोला था कि भाई 1 मेडल से संतुष्ट नहीं, कि ये कि हम इसका सेलिब्रेशन करें और उसके बाद हम ट्रेनिंग छोड़ दें. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अभी सभी यही जितने भी खिलाड़ी मेडल जीत के आप किसी से बात करोगे तो वो यही बोलेंगे कि भाई हमारा टारगेट पेरिस है, और हम अपने देश को पेरिस में भी सोना दिलाना चाहते हैं. जो मेडल जीत के आए हैं उनका यही है कि भाई हम गोल्ड की तैयारी करेंगे. जो नहीं जीत के आए आप उनसे भी पूछ के देखिए, वो भी यही बोलेंगे. जो क्योंकि बहुत सारे मेडल हमारे कुछ थोड़ी कमियों से चूक गए, जो वो हम पेरिस में पूरा कर सकते हैं. तो उनसे पूछ के देखिए, उनका भी यही टारगेट है कि भाई हम देश के लिए गोल्ड जीतेंगे. तो वो बदलाव जब मेडल जीते, जब परफॉर्म एक दिल खोल के परफॉर्म करते हैं ना, तो वो अंदर से आती है कि भाई हम कर सकते हैं. पहले प्रेशर में रहते थे तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे इतनी. ओलंपिक में जब भी जाते थे कि भाई हाँ, मीडिया का पूरा फोकस एक आदमी पे हो जाता था कि भाई हाँ सुमित मेडल लेके आएगा, नहीं लेके आएगा. तो वो सुमित पे इतना प्रेशर डाल देते थे कि भाई समझ में नहीं आया क्या चल रहा है. तो प्रेशर में आदमी, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बता रहा हूँ, अगर मेरे ऊपर इतना प्रेशर डालोगे तो मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता. तो जो खिलाड़ी जा रहा है आप उनको मोटिवेट करिए कि भाई हाँ आप कर सकते हैं. उसका साथ दीजिए, ना कि उसके ऊपर प्रेशर डालिए कि भाई आपको लेके ही आना है. तो प्रेशर में कोई भी खिलाड़ी अच्छा नहीं कर सकता. अगर हम खुल के खेलेंगे तो हम बहुत सारे मेडल और भी जीत सकते हैं. सबसे ज़्यादा प्रेशर तो एथलीट खुद अपने आप पे डालते हैं.
वो मीडिया जब लिखती है तभी एथलीट पे आता है। Okay, sorry. It's a two-edged sword. When more and more attention comes to an athlete, then that also translates into a lot of pressure. But I get your point. But you are obviously not happy with your bronze, right? बजरंग, ये खुले में आप भी बोलते हो कि आप खुश नहीं हो। मुझे याद है आपके ब्रॉन्ज के बाद कुछ घंटों बाद मैंने आपसे बात करी थी, इंटरव्यू किया था टोक्यो में जब आप थे, तो आपको देख के नहीं लग रहा था कि आपने मेडल जीता है, आप उदास थे उस वक्त। देखिए बिल्कुल, क्योंकि मैंने जो तैयारी की थी, मेरे पास हर मेडल है। एशियन गेम्स के 2 मेडल हैं, गोल्ड सिल्वर, कॉमनवेल्थ गेम्स के, वर्ल्ड चैंपियनशिप के 3 मेडल हैं मेरे पास। बस मेरा यही था कि भाई मैं ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड जीतूँ। हमारे पास सिल्वर भी था और ब्रॉन्ज भी था। तो वो मैं रसिया में एक टूर्नामेंट खेल रहा था, उसमें मुझे इंजरी हो गई थी ओलंपिक से जस्ट 1 महीना पहले ही। तो वो मुझे काफ़ी नुकसान दे के गई। पर हाँ, जो कमी है मुझे लगता है कि मैं पेरिस में उसके लिए और मेहनत करूँगा और उसको पूरा करने की। ब्रॉन्ज भी मतलब चोट में, इंजरी में ब्रॉन्ज जीतना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, सिर्फ चोट पे आपने ब्रॉन्ज नहीं जीता, आपने मैच से पहले अपने कोच को बोला कि मेरी पट्टी हटा दो घुटने पे से, क्योंकि अब जो होगा देखा जाएगा। तो बिल्कुल, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल रखा था, अगर आप रिस्क लेंगे तो सर्जरी करवानी पड़ सकती है। तो मैंने बोला अगर मेडल नहीं जीता तो फिर फ़ायदा क्या है, 4 साल हमारे पास, 3 साल है, तो मैं सर्जरी भी करवा लूँगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि रेसलिंग में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो सर्जरी के बाद कम बैक करते हैं। तो मगर इतनी मेरे लिए अभी मेडल महत्व रखता है, क्योंकि मैंने इसके लिए मेहनत करी है। तो मेरे लिए अभी ये ज़रूरी है। तो इसी सोच के कि भाई मैं पट्टी नहीं लगाऊं, क्योंकि मैंने डॉक्टर से पहले बोला था, डॉक्टर बोला कि भाई अगर आप पट्टी हटाओगे तो नेक्स्ट बाउट में पता नहीं आप खेल पाओगे नहीं खेल पाओगे। तो वो लास्ट बाउट थी, तो मुझे लगा कि भाई अगर मैं पट्टी के साथ जाऊंगा, अगर नहीं अच्छा कर पाया तो फिर पट्टी का फ़ायदा क्या हुआ। तो मैं बोला मैं इसको हटा ही दो, जो भी होगा वो देखा जो होगा देखा जाएगा। बट ये तो बहुत बड़ा गैम्बल होता है एथलीट के लिए। ये उस चीज़ के लिए हमने मेहनत बचपन से, उसी चीज़ के लिए मेहनत, जब से नहीं, ओलंपिक बट के आप बारे में और भी सुना, ओलंपिक्स खेल सकते हैं वो बाद की बात है। अच्छा, उस पे रिस्क नहीं ले सकते। अभी पहले मेरा टारगेट, सब मेरे से पूछते थे भाई आप 24 में भी खेलेंगे, मैं बोलता था कि भाई मेरा पहला टारगेट 20 का है। क्योंकि अगर मैं 24 की सोचूं, 20 भी हाथ से निकल जाए, 24 भी ना आए, तो किसको क्या पता। मैंने बोला कि पहले मेरे लिए 20 है, मैं 20 का टारगेट है, मैं 24 की नहीं सोच रहा। क्योंकि हम भी किसी को हरा के आगे आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई हम सारी ज़िंदगी हम ही कुश्ती पे राज करें, तो हमारी जगह कोई और भी आएगा। तो मेरा टारगेट 20 का है। 20 के बाद अगर मैं अच्छा करूंगा तो 24 तक खेलूंगा। तो अभी मेरा टारगेट 24 का है कि भाई जो मैं 20 में नहीं कर पाया उसको मैं 24 में पूरी मेहनत करूं और देशवासियों को खुशी का पल दूं कि भाई मैं गोल्ड जीत के लेके आऊं। We certainly hope that you improve your medal in 2024। सिर्फ 3 साल की बात है। लेकिन ये जो हंगर है सुमित, ये जो मोटिवेशन है, ये जो हंगर जैसे जो बजरंग ने बताए, और ये वैसे भी कमबैक किंग की तरह माने जाते हैं, बाउट के लास्ट 2-3 मिनट में हमेशा कुछ करके जाते हैं। एक सवाल वैसे बजरंग आपसे मैं दोबारा ये पूछना चाहती हुई, ये क्या है, ये आप मतलब पहले बाउट स्लो स्टार्ट करते हो, फिर लास्ट के 3 सेकंड में सडनली कुछ ऐसा मूव निकालते हो, ऐसा टैकल करते हो, ऐसा क्यों है? ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कोच मुझे भी काफ़ी बार बोल चुके हैं। क्योंकि बोलते हैं कि भाई स्टार्टिंग से कुश्ती पे कंट्रोल करके चल, तो वो मेरे से नहीं होता। जब सामने वाला पॉइंट लेता है तब मुझे लगता है कि भाई आप कुश्ती स्टार्ट कर देते हैं। ओके। तो मुझे लगता है कि मेरी कुश्ती है जो वो मेहनत की, हार्डवर्क की और स्टेमिना और पावर की है। तो लास्ट तक मुझे लगता है मैं सामने वाले को 6 मिनट तक थका लेता हूँ और उसी के कारण मैं कुश्ती जीत पाता हूँ। बट आपको ये नहीं लगता कि अगर 1 पॉइंट 2 पॉइंट आगे हो गया मेरा ओपोनेंट, तो लास्ट में मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? नहीं, ऐसा 8-8 पॉइंट आगे होने के बाद भी कुश्ती चेंज हुई है, तो ऐसा कभी नहीं लगता कि भाई हाँ, बस वो अंदर से जब मेहनत होती है तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि मैं कर सकता हूँ। तो नेवर से डाई एटीट्यूड है आपका बिल्कुल, कि आप बिल्कुल लास्ट सेकंड तक आपको लगता है कि मैं इस बाउट में जीत सकता हूँ। कोशिश यही रहती है कि भाई मैं लास्ट तक, जो 6 हमारे कोच बोलते हैं कि जो 5:59 होते हैं 6 मिनट होने में, तो जब 6-1 विसल बजने के बाद ढीला छोड़ो, उससे पहले नहीं। उससे पहले कुश्ती में कुछ भी हो सकता है। तो उसी के लिए हम मेहनत करते हैं कि लास्ट सेकंड में भी फैसला हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड यू आर अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट स्पिरिट। You leave it a little too late, but you never say die, so that's a good thing. And that's why his bouts are so amazing to watch, and that's why I think a lot of us were enthralled, because all of our athletes presented such amazing performances, and whether they won a medal or not. For example, he talked about near misses. There's women's hockey team, that went down in the bronze medal playoff. There's of course Aditi Ashok, who brought golf back into our living rooms. So many great stories. But that hunger and motivation, Sumit, वो
कहाँ से आता है? बिकॉज मे बी नॉर्मल लोग जो होते हैं ना, नॉन एथलीट होते हैं, उनको समझ नहीं आता कभी कभी कि ये जज्बा, ये जुनून क्या है, कहाँ से आता है? कैसे आप रोज सुबह 4 बजे उठ के ट्रेन करते हो, रोज वही चीजें करते हो, सिर्फ ये सोच के कि हाँ एक दिन में मुझे मेडल मिलेगा? बिल्कुल मैम, लोग जनरली पूछते हैं कि क्या ऐसा मोटिवेशन है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि जो भी आपके लाइफ का एम है, आप अपने बेड के सामने रखे उस एम को, लाइक पोर्ट्रेट बना के या उसकी पेंटिंग बना के। तो जब जब आप उठोगे, उसको देखोगे, तो आपको पक्का मोटिवेशन मिलेगा उस चीज़ से। और ऐसा नहीं होता कि खिलाड़ी मोटिवेट भी रहता है, कभी कभी कोच भी मोटिवेट कर देते हैं उसको डंडों से। तो कोच का एक काफ़ी बड़ा रोल होता है एक खिलाड़ी को मोटिवेट रखने में, और फ्रेंड्स का, फैमिली का। तो वो मतलब एक एथलीट जब जीतता अकेला है, बट उसके पीछे काफ़ी लोगों की स्ट्रगल होता है, एक एथलीट की, उसके फिजियो का, उसके मैश्योर का, उसकी फैमिली का। बट जब जब एथलीट डिमोटिवेट होता है अपनी परफॉर्मेंस से या किसी भी लाइक पर्सनल रीज़न से, तो खिलाड़ी के जो दोस्त होते हैं, खिलाड़ी की फैमिली होती है, वो उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट करती रहती है। दैट सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक मैसेज आप देना चाहेंगे कि आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपकी जो लाइफ पहले थी, मेडल से पहले, मेडल के बाद, अब 3-4 महीने से तो आप बहुत सारे इवेंट्स में भी जा रहे होंगे, बहुत लोग आपको सुन रहे हैं, बहुत इंटरव्यूज़ आप दे रहे हैं, लेकिन आपकी क्या उम्मीद है कि इस गेम्स की परफॉर्मेंस के बाद क्या चेंज आना चाहिए? मतलब आप एक एथलीट की तरह बताइए, आपकी अपनी लाइफ में क्या चेंज आया है और क्या चेंज ज़रूरी है जो आपको हेल्प करेगा कि 2024 में आप फिर से दोबारा अच्छी परफॉर्मेंस से? बिल्कुल मैम, जब मैंने गेम स्टार्ट किया था तो सीधा वर्ल्ड रिकॉर्ड की सोची थी। ऐसा नहीं था कि मेरे को पैरालंपिक्स में गोल्ड जीतना है, या मैं आई जस्ट वांटेड टू ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो अब वो हो गया है। तो जिस तरह से पैरा एथलीट्स को रिकॉग्निशन मिली है, सपोज़ कीजिए जो मेरे साथ हुआ, हालांकि मैं उम्मीद करूँगा किसी के साथ भी ना हो, बट अब इमेजिन कीजिए कि किसी नए बच्चे के साथ अगर जो ये हो जाता है, तो उसके पास काफ़ी, उसको पहले से ही पता होगा कि हाँ पैरा एथलेटिक्स भी होते हैं, जो हमें नहीं पता था उस टाइम पे कि हाँ पैरा गेम्स भी होते हैं। मेरे को हमारे ही गांव के पैरा एथलीट ने बताया कि ऐसे ऐसे पैरा गेम्स, इवन आई डोंट नो अबाउट जैवलिन भी कोई गेम होता है। तो अभी नीरज भाई के मेडल से, मेरे मेडल से लोगों को पता लग गया कि जैवलिन भी हाँ एक्चुअली एक गेम होता है। तो जब शुरू में मैं जैवलिन्स अपने घर पे कैरी करता था, तो एक जैवलिन की कॉस्ट लगभग 1.25 लाख थी। तो मैं छिप छिपा के लेके जाता था उनको रात को, कि कभी कोई कॉस्ट पूछ ले और मेरे को लाइक बोले कि हवा बना रहा है, ऐसा कुछ। तो उसके बाद में लाइक कोई भी अभी बाई चांस किसी भी रीज़न से डिफरेंटली एबल्ड हो जाता है, तो उसको लाइक उसके पास ऑलरेडी काफ़ी इंस्पिरेशन है। खास करके इंडिया में भी काफ़ी इंस्पिरेशन है उसको। लाइक यूट्यूब पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है उसको। लाइक हम हैं, और हमारे जैसे कई एथलीट्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी लाइक देश का नाम रोशन किया है। तो शायद उसका स्ट्रगल कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि मैं अपने जितने भी लाइक जिनके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वो मेरे को देख के काफ़ी मोटिवेट होते हैं। शायद उस टाइम पे, जिस टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे पास ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था उस टाइम पे। लाइक आई टू गूगल अबाउट ओसर पिस्टोरियस, जो इकलौते स्प्रिंटर है ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले। तो उनके बारे में फिर मैंने पता लगा कि हाँ इंडिया में भी देवेंद्र झांझरिया भाई साहब है जिन्होंने जान। तो अभी अवेयरनेस काफ़ी बड़ी है, रिकॉग्निशन मिली है, तो उसको गूगल कर, वो ऑलरेडी जानता होगा कि हाँ अवनी भी कोई है, सुमित भी कोई है, कृष्णा भी कोई है। तो उसको लाइक वो थोड़ा बहुत जो डिमोटिवेशन उस टाइम पे होता है, तो वो थोड़ा सा कम होगा, ख़त्म नहीं होगा, बट या थोड़ा कम होगा। तो वो उस चीज़। चेंज ऑलरेडी आ चुका है। बिल्कुल आपको लगता बिल्कुल। है? अवनी, हाउ हैज योर लाइफ चेंज्ड एंड इज देयर स्टिल समथिंग दैट यू होप चेंजेस आफ्टर योर सक्सेस? Um, like I said, my life has changed in a good way, and I realize that sport has an ability to change the perception of the community about the people with disability, and most importantly, how us as a person with disability see ourselves and think about ourselves. And this success will definitely bring out growth in para sports, and we'll see more of a global popularity as such. And this is because we have got immense amount of support from our government and federation also. But I feel that if a lot of stakeholders and sponsors put in efforts at the grassroots levels, when the athlete is just starting, and give them more information, give them more support, then we can see a lot of athletes on elite level, and we can multiply the numbers of the Paralympians and Paralympic medalists or Olympic medalists that we saw this year itself. And it is something that can also because this medal is
I feel this medal is for all of these medals are all of us who dare to dream and who think that if we fight and if we fight hard enough, we can achieve anything in this world. Well, certainly. On that note, I have to thank our guest. Avni has brought her 2 medals with her as well. I would like her to show. Sumit, you have your medal as well? It must be a very proud feeling holding those medals. Bajrang, आपके पास नहीं है, but you know the feeling, right? ऐसा ही है, ब्रोंज जैसा ही Yes. है। All right, thank you, Bajrang, Avni and Sumit. It was a pleasure talking to you. बहुत बहुत शुक्रिया.